لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في موضع آخر وصل لربك وانحر تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ ان کو بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر آمین۔ قربانی کا موقع ہے اور اس تعلق سے کافی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج بھی اسی ٹاپک پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ کل عید کا دن ہے جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں دو تہوار جو اسلام نے قرآن و حدیث نے ہمیں دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور عید کے معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنا، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر سال گھوم گھوم کے آتا رہتا ہے۔ تو عید کے معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنا، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے جو رہنے والے لوگ تو جن کو انصار یا اوس و خزرج کہا جاتا تھا، وہ لوگ دو تہوار مناتے تھے آپ کے جانے سے پہلے، وہاں پہنچنے سے پہلے، اور اس میں وہ خوشیاں مناتے تھے، آزادیاں منایا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے، تہوار کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے تھے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ان دو تہواروں سے بہتر تہوار دیے ہیں، تمہیں ان دو تہواروں سے اچھے تہوار دیے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عید ہے اور ایک بقرہ عید ہے۔ عید جو رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد
शव्वाल का महीना शुरू होता है तो 1 तारीख को, और जिसको हम लोग बकरा ईद दूसरी वाली, जिसको ईद उल अजहा बकरा ईद जिसको हम लोग कहते हैं, ये इस्लामी साल का जो आखिरी महीना होता है जिसको जुल्हिज्जा कहते हैं, उसकी 10 तारीख को मनाई जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो 2 त्यौहार तुम लोग मनाया करते हो, उन 2 त्यौहारों से बेहतर त्यौहार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दिए हैं। एक का नाम ईद उल फित्र है और एक का नाम ईद उल अजहा है। इस तरीके से ये 2 ईदें मनाने का और ये 2 त्यौहार मनाने का हुक्म इस्लाम के अंदर हमें और आपको मिला। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कौम के अंदर त्यौहार मनाने का कोई ना कोई दिन हुआ करता है। हमारे शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर भी 2 त्यौहार मनाने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, एक ईद और एक बकरा ईद। तो ईद के माना मालूम हुआ, बार बार लौट कर आना। और ये कैसे शुरू हुई, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम हुआ कि आप जब हिजरत करके मक्का से मदीना, मक्का में जब तक के तब ईद नहीं मनाई जाती थी, जब मदीना पहुंचे तब ईद मनाना शुरू किया। ईद के दिन करना क्या है, क्योंकि कल ही है, इसलिए इसी टॉपिक पर कुछ बातें की जाएंगी। ईद के दिन बहुत सारे काम हैं, उसमें से कुछ काम ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा मशहूर हैं, और अगर उनको मैं समझता हूँ कि छोड़ भी दिया जाए तब भी आप लोगों के ज़हन में रहेंगे, जैसे नहाना, खुशबू लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये तमाम चीजें आप लोगों को वैसे ही मालूम है, नहीं भी बताएंगे तब भी वो करना है। ईद के दिन के ताल्लुक से एक हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर आई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला मा नब्दउ मिन यौमिना हाज़ा अन नुसल्ली। ईद के दिन सबसे पहले हम ईद की नमाज पढ़ेंगे। फजर की नमाज के बाद, ईद की नमाज का वक्त मालूम है ना, सूरज निकलने के बाद जितनी जल्दी हो सके आप ईद की नमाज पढ़ लीजिए। सूरज निकल आए उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आप ईद की नमाज को पढ़ लीजिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें देर नहीं करना चाहिए सूरज निकलने के बाद। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के दिन सबसे पहले हम ईद की नमाज पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे, कुर्बानी करेंगे, या जिसने ईद के दिन सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ी, वापस आने के बाद में कुर्बानी की, फकद असाबा सुन्नतना, ये हदीस के अल्फाज है कि उसने मेरी सुन्नत पर अमल कर लिया। नमाज पढ़ ली और कुर्बानी कर ली, उसने मेरी सुन्नत के ऊपर अमल कर लिया। यहाँ से एक बात ये मालूम हुई कि कुर्बानी करना सुन्नत है। जैसे ईद की नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इसी तरीके से कुर्बानी के बारे में भी फरमा रहे हैं। तो कुर्बानी करना सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी करना वाजिब है, शायद आप लोगों को मालूम हो ये बात। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी करना वाजिब है। वाजिब का मतलब होता है कि नहीं करोगे तो गुनहगार कहलाओगे, ये वाजिब का मतलब होता है। और सुन्नत का मतलब ये है कि उसको अगर आपके पास में कोई मजबूरी है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तो ये सुन्नत है कुर्बानी करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के बाद लौट कर आया और उसने फिर कुर्बानी कर ली, फकत अताबा सुन्नताना, तो उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। मालूम ये हुआ कि कुर्बानी करना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। इसलिए एक और हदीस में आप देखें, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलात, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली, फ़इन्नमा ज़बह लिनफ़्सी, तो उसने गोश्त खाने के लिए कुर्बानी की है। वमन ज़बह बअद सलात, और जिसने ईद की नमाज के बाद में कुर्बानी की, फ़क़द तम्मा नुसुकहू, तो उसने हकीकत में कुर्बानी की है, फ़क़द असाबा सुन्नतल मुस्लिमीन, और उसने सुन्नत के ऊपर अमल कर दिया। इससे भी मालूम हुआ कि कुर्बानी करना सुन्नत है, वाजिब नहीं था। यहाँ पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले क्या करना है ईद वाले दिन? पहले नमाज पढ़ना है ईद, और उसके बाद में कुर्बानी करना है। एक सहाबी को ये बात मालूम नहीं थी, उन्होंने कहा कि आज तो ईद का दिन है, चाहे पहले नमाज पढ़ लो चाहे पहले कुर्बानी कर लो। तो उन्होंने पहले कुर्बानी कर ली और बाद में जाके नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, पहले नमाज पढ़ो उसके बाद में कुर्बानी करो। देखिए कुरान की आयत देखें, इन्ना आतैना कल कौसर,
फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ए नबी आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। पहले नमाज पढ़िए फिर कुर्बानी कीजिए। कुरान की आयत भी ये बता रही है, अगर कोई आदमी पहले नमाज पढ़ता है और कुर्बानी करता है तो वो कुरान के ऊपर अमल कर रहा है, और अगर किसी ने पहले कुर्बानी कर ली बाद में नमाज पढ़ रहा है तो उसने इसको उल्टा कर दिया तो नहीं मानी जाएगी। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो मालूम यह हुआ कि ईद के दिन पहले नमाज, उसके बाद खुतबा और उसके बाद कुर्बानी। मैंने अभी बताया था कि जितनी जल्दी हो सके आप सूरज निकलने के बाद नमाज को अदा करने की कोशिश करें। और इस ताल्लुक से एक हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यखरुजु यौमल फित्रि हत्ता यतअमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते थे जब तक कुछ खा नहीं लेते थे। ईद वाले दिन आप कुछ खाकर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, और हदीसों के अंदर आता है कि आप खजूरें वगैरह कुछ लेकर जाया करते थे, वो हदीस के अंदर आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन खाकर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। वला यतअमा यौमल अज़हा हत्ता युसल्ली, और बकरीद के दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन जो कल है, फरमाया कुछ भी नहीं खाते थे जब तक कि आप नमाज नहीं पढ़ लेते थे। क्या पता चला, ईद के दिन खाकर जाना सुन्नत है और बकरीद के दिन वापस आकर खाना सुन्नत है। ईद वाले दिन खाकर जाइए आप, इजाजत है, और बकरीद वाले दिन बगैर खाए जाइए, वापस आने के बाद न खाइए। अब जाहिर सी बात है, आप अगर बगैर खाए जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि जल्दी नमाज हो जाए, बगैर खाए जाएंगे तो आप ये सोचेंगे जल्दी कुर्बानी हो जाए, ये सोचेंगे ना। और घर ही से जब खूब खा पी के जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 8 बजे नमाज पढ़िए 9 बजे नमाज पढ़िए, क्या फर्क पड़ता है, हम तो पूरा नाश्ता किए हुए खा पी के गए हम तो ईद की सुन्नत ये है कि खा के जाओ, और बकरीद की सुन्नत है कि वापस आने के बाद में खाओ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जब सुबह से जब आप फजर में उठेंगे, उसके बाद फिर इतना लंबा वक्फा, फिर सूरज निकला, उसके बाद नमाज पढ़ी, फिर खुतबा सुना, उसके बाद घर पे आए, तो आपको लगेगा कि ये तमाम काम जल्दी हो जाना चाहिए। हम लोग खा लेते हैं इसलिए फिक्र नहीं रहती है, कभी कभी जल्दी ऐलान हो जाता है नमाज का कि नमाज मान लीजिए जल्दी ऐलान हो गया अगर, तो कहते हैं बड़ी जल्दी रहती है, बहुत जल्दी टाइम लग गया, इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि फिक्र इसलिए नहीं रहती कि खूब खा पी लेते हैं। तो बकरीद के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाकर नहीं जाते थे, वापस आने के बाद में खाते। अच्छा, यहाँ से एक चीज और देखें आप, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बकरीद के दिन आधे दिन का रोजा है, आधे दिन का रोजा, यानी जब आप वापस आएंगे सुबह से कुछ खाना नहीं है, जब वापस आएंगे लौट कर तब कुर्बानी जो करेंगे उसमें से आप उसका गोश्त खाएंगे। तो कहते हैं कि ये आधे दिन का रोजा हो गया। तो मैं आपको बता दूं, इस्लाम के अंदर आधे दिन का रोजा नहीं होता। आप इसको कुछ भी नाम दे लें, लेकिन इस्लाम में आधे दिन का रोजा नहीं होता, रोजा पूरे दिन का होता है। और कब से कब तक होता है? सहरी का वक्त जहाँ से खत्म होता है वहां से शुरू होकर मगरिब की अजान का जो वक्त जिसमें सूरज गुरूब हो जाता है, वहां तक अगर आप भूखे प्यासे रहते हैं तब जाकर वो रोजा माना जाता है। आप ये सोचें कि फजर के बाद से हम कुछ ना खाएं फजर के टाइम से, और 8 बजे 9 बजे तक खा लें, और हम ये कहें कि आधे दिन का मेरा रोजा था। इस्लाम में आधे दिन का रोजा नहीं है, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है, ये एकदम जहालत है कि मैंने आधे दिन का रोजा रखा या आधे दिन का रोजा है। और दूसरी बात, ईद के दिन और बकरीद के दिन रोजा रखना हराम है। ईद और बकरीद के दिन रोजा रखना हराम है। अगर कोई ईद के दिन रोजा रखता है, बकरीद के दिन रोजा रखता है, तो उसको सवाब नहीं गुनाह मिलेगा, गुनाह पड़ेगा उसके ऊपर। अगर कोई ईद और बकरीद को रोजा रख लेता, हराम है ईद के दिन रोजा रखना। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे आधे दिन का रोजा था या ईद बकरीद के दिन जो है आधे दिन का रोजा होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। आधे दिन का कोई रोजा इस्लाम के अंदर नहीं है। ईदगाह में अक्सर देखा जाता है
लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, पहले पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तकबीरें भी पढ़ते रहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, जाते वक्त भी पढ़ना चाहिए, रास्ते में भी पढ़ना चाहिए, लौट के आओ तब भी पढ़ना चाहिए। बकरीद की बात कर रहा हूं मैं, ईद वाले दिन नहीं। ईद वाले दिन ईद की नमाज खत्म, तकबीर खत्म, अब आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, आप तकबीर नहीं पढ़ें। लेकिन बकरीद को 13 तारीख की शाम तक तकबीरें आपको पढ़ना है। ईद वाले दिन नमाज के बाद ही से खत्म कर दीजिए, बकरीद वाले दिन 13 तारीख की शाम तक पढ़ते रहिए। तो जाते में भी पढ़िए, आते में भी पढ़िए, बाजार में भी पढ़िए, घर में भी पढ़िए, मस्जिद में भी पढ़िए, अकेले हो तब भी पढ़िए, जब चाहे जब आप पढ़ सकते। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तकबीरें पढ़ते हैं, वहां बैठ जाते हैं, वहां भी बैठकर तकबीरें पढ़ते हैं, जब तक नमाज शुरू नहीं होती है तब भी तकबीरें पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक चीज, अभी मान लीजिए नमाज में 5 मिनट बाकी या 10 मिनट बाकी, माइक लगा हुआ है, कोई भी साहब खड़े हो जाते हैं, भाई आप लोग बुलंद आवाज से तकबीरें पढ़ते रहिए, और उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो सारे लोग सुन के उनकी आवाज से आवाज मिला के दोहराने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है कि माइक पर खड़े होकर एक आदमी ऐलान करे और उसके बाद में फिर वो पढ़े और उसकी आवाज से आवाज मिलाकर सारे लोग तकबीर पढ़ना शुरू करें। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये इज्तिमाई तकबीर हो गई, जिसकी इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम ने जो तकबीर पढ़ने की इजाजत दी है वो अपनी अपनी दी है, अपनी अपनी पढ़िए, आप अपनी दोहराइए, आप अपनी दोहराइए। किसी ने कहा और उसके कहने पर सारे लोगों ने एक साथ पढ़ना शुरू कर दी, एक साथ पढ़ना बंद कर दी, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मेरे सामने इससे पहले भी एक मरतबा ये बात आई थी, तभी मैंने ये बताया था कि वो जो माइक थमा दिया जाता है ना तकबीर पढ़ने वालों को, उनको वो माइक देना ही नहीं चाहिए, या उनको मतलब बता देना चाहिए कि ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे, ये इस्लाम के अंदर एक नया काम शुरू कर दे रहे हैं। तकबीर पढ़ने की इजाजत है, आप वहां बैठकर पढ़ते रहें, अपनी अपनी दोहराते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन एक आदमी माइक पर खड़े होकर जब वक्त नहीं हुआ तो आके खड़े हो गए, भाई आप लोग बुलंद आवाज से तकबीर दोहराएं, और उसने पढ़ना शुरू किया तो सबने पढ़ना शुरू किया, उसने पढ़ना बंद किया, सबने पढ़ना बंद किया। बिल्कुल गलत तरीका है ही नहीं इस्लाम के अंदर ये तरीका। और अगर मैं ये कहूं कि ये बिदअत है तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं हो। बिदअत कहते किसको? जो तरीका सुन्नत में ना हो आप उसको सुन्नत समझ के करें, उसी को तो बिदअत कहते हैं। तो ये तरीका गलत है, इसका ख्याल रखिएगा, ये बहुत ज्यादा देखने में आता है ईदगाह के अंदर। अच्छा एक चीज और देखिए, बड़ी प्यारी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम जो ईद की नमाज पढ़ाते हैं, जब वो नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो, नमाज पढ़ा ईद की, तो पहली रकात में सूरे आला सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, और दूसरी सूरत में सूरे गाशिया हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ाएं, या ये दोनों सूरतें नहीं ना पढ़ाएं तो पहली रकात में सूरे काफ और दूसरी रकात में सूरे कमर पढ़ाएं। देखिए कुरान के अंदर 114 सूरतें, लेकिन ईद की नमाज में यही 4 सूरतों के बारे में फरमाया, या तो सूरे आला और सूरे गाशिया पढ़ा दो, या सूरे कमर और सूरे काफ पढ़ा दो। इसके अंदर फायदा क्या है, हिकमत क्या है, यही 4 का हुक्म क्यों दिया? अगर गौर करेंगे तो मालूम होगा कि ईद का दिन खुशी मनाने का दिन होता है, ईद एक त्योहार है, खुशी मनाने का एक दिन है तमाम मुसलमानों के लिए, लेकिन जो नमाज पढ़ी जा रही है उसके अंदर सूरे आला पढ़ाई जा रही है, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, और सूरे गाशिया पढ़ाई जा रही है, अल्लाह का हदीसुल गाशिया। क्यों? इसलिए कि सूरे आला के अंदर ये बयान किया गया है कि आप अपने दिल को पाक रखिए, अपने नफ्स को पाक रखिए, अपने दिल का तज़किया करते रहिए, अल्लाह से डरते रहिए। ये सूरे आला के अंदर बयान किया गया है, और सूरे गाशिया के अंदर ये बयान किया गया है कि दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक को अल्लाह जन्नत में डालेगा, एक को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। जिनको अल्लाह जन्नत में डालेगा वो नेक होंगे, और जिनको अल्लाह जहन्नम में डालेगा वो बदतरीन और गुनहगार होंगे। तो पहली रकात में ये बताया गया कि अपने दिल को पाक करो, और दूसरी रकात में जो सूरे गाशिया पढ़ाई गई है उसमें यह बताया गया कि आप इन 2 गिरोह में से आज के
दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कौन से ग्रुप के साथ में जाना चाहते हैं, गुनाह करके गुनहगारों के साथ में और जहन्नमियों के साथ में, या नेक काम करके आज के दिन नेक लोगों के साथ और जन्नत में जाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है सूरह आला और सूरह गासिया का मतलब? अच्छा, एक चीज और बताई गई, या तो सूरह काफ पढ़ो या सूरह कमर। अगर ये नहीं पढ़ते तो ये पढ़ो, सूरह कमर पढ़ो नमाज के अंदर या सूरह काफ। सूरह काफ और सूरह कमर में क्या है? सूरह काफ के अंदर मरने के बाद के हालात बयान किए गए हैं सूरह काफ के अंदर, और सूरह कमर के अंदर दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो उम्मतें आई उनमें से 4-5 उम्मतों का, नूह अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, उन लोगों की उम्मतों का जिक्र करके अल्लाह ने ये बताया कि इनको किन गुनाहों की वजह से हमने हलाक कर दिया और दुनिया के अंदर इनको अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दिया। तो अल्लाह ने सूरह कमर में ये बताया कि तुम इन जैसे अगर काम करते हो तो तुम्हें भी ऐसे ही हलाक कर दिया जाएगा। और सूरह काफ में ये बताया कि खुशियां तो आज मना रहे हो, लेकिन आजादी तो अल्लाह ने तुम्हें दी है खुशी मनाने की, लेकिन तुम अपने आप को इस्लाम से आजाद न समझने लगना। दीन से तुम आजाद नहीं हुए हो, इस्लाम से आजाद नहीं हुए हो। सूरह काफ पढ़कर ये बताया गया कि अगर तुम अपने आप को इस्लाम से और दीन से आजाद समझ रहे हो तो एक दिन तुम्हें मरना भी है और मरने के बाद मेरे पास में आना है। इसलिए दोनों सूरतें पढ़ाकर ईद की नमाज के अंदर ये बता दिया कि खुशियां भी मनाओगे तो इस्लाम की हद में रखकर बनाओगे, इस्लाम से बाहर रहकर। समझ में आ रहा है कुछ? सूरह कमर, सूरह आला, सूरह गासिया क्यों पढ़ी जाती है ईद की नमाज के अंदर, क्यों हुक्म दिया गया? चलिए और बात को आगे बढ़ाते हैं। एक मसला और है, मसला ये है क्या सिर्फ मर्द ईदगाह जाकर, जो हमारी ईदगाहें हैं, क्या सिर्फ मर्द ईदगाह जाकर ईद की नमाज अदा करेंगे या औरतें भी ईदगाह जा सकती हैं? औरतों को भी जाना चाहिए या सिर्फ मर्दों को जाना चाहिए और औरतों को मोहल्लों की मस्जिद में नमाज अदा कर लेना चाहिए, जैसा कि हमारे यहाँ रिवाज है? बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, हजरत उम्मे आतिया बहुत ही मशहूर सहाबियां हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बयान करती हैं उमिरना अन नुखरिजल आवादिक़ व ज़वातिल क़ुदूर व लुक़ियत यौमल ईदैन। हजरत उम्मे आतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें अल्लाह के नबी ये हुक्म दिया करते थे कि हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जब भी जाएं, चाहे वो ईद की नमाज हो या बकरीद ईद की नमाज हो, तो हम अपने साथ औरतों को लेकर ईदगाह जाए। औरतों को ये हुक्म मिलता था, औरतों को ये हुक्म मिलता था कि वो ईदगाह जाकर नमाज को अदा करें। और इतना सख्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अगर जो औरतें अय्याम माहवारी में, हालत हैज में, उनको भी हुक्म था कि वो भी ईदगाह जाया करें। पूछा गया अल्लाह के नबी वो क्या करने के लिए जाएंगी? उनके ऊपर तो रोजा भी माफ, नमाज भी माफ, नमाज तो वो पढ़ेंगी नहीं, तो किस लिए जाएंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वहाँ पर खुतबे के अंदर दुआ होगी तो वो दुआ में शामिल हो जाया करें, और वो मर्दों के साथ में वो भी अपने लिए दुआ किया करें। नमाज में शामिल नहीं हो सकती तो कम से कम दुआ के अंदर तो शामिल हो सकती हैं, दुआ में शामिल हो जाया करें, लेकिन नमाज पढ़ने वहाँ जाए, ईदगाह जाए। कौन? जो हालत हैज में है, ऐसी औरतें। इससे अंदाजा कर सकते हैं आप कि औरतों को ईदगाह ले जाने का मसला कितना सख्त है। एक सहाबी बयान, अभी हदीस खत्म नहीं हुई, बुखारी शरीफ की रिवायत है, सहाबिया बयान करती हैं एक औरत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी बड़ी गरीबी का मामला है, हम में से हर किसी के पास में ओढ़नी नहीं होती, बुर्का नहीं होता, चादर नहीं होती, तो हम कैसे जाया करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत के पास में 2 चादरें हों तो वो उस औरत को चादर दे दे जिसके पास में चादर नहीं है। लितुल्बिसा साहिबतुहा मिन जिलबाबिहा, उस औरत को चादर दे दे जिसके पास में चादर नहीं है, लेकिन लेकर जरूर उसको ईदगाह में जाए। मालूम ये हुआ कि औरतों को भी ईदगाह जाना चाहिए, और इतना सख्त हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ की रिवायत देखिए, बड़ी प्यारी रिवायत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन हमें नमाज पढ़ाई,
बकरा ईद के दिन मैं नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद में आप खड़े हुए, आपने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद फरहा अन्नहु लम युस्मि'न निसा, आपको ये लगा कि मेरी आवाज औरतों तक नहीं पहुंच पाई। खुतबा दे दिया, माइक तो होते नहीं थे जो सब में पहुंच जाएगी, भीड़ है काफी। फरहा अन्नहु लम युस्मि'न निसा, आपको ऐसा मालूम हुआ कि मेरी आवाज औरतों तक नहीं पहुंची है। फाताहुन्ना फज़क्करहुन्ना व अमरहुन्ना बिस्सदक़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले, औरतों के पास में आए और वहां पर आकर फिर उनको भी खुतबा दिया, उनको भी समझाया, उनके सामने भी अल्लाह के कुरान को रखा और उनके सामने सदका व खैरात की बारे में बताया। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में थे। हजरत बिलाल बयान करते हैं, जब औरतों ने सदक़े के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तो किसी औरत ने अपने कानों से बाली निकाल कर दे दी, किसी ने अपने गले से सोने का हार निकाल कर दे दिया, किसी ने अपने हाथों से सोने के कंगन निकाल कर दे दिए, और इस तरीके से औरतों ने वहां पर बहुत ज्यादा सदका किया। ये दोनों हदीसें क्या बता रही हैं? औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईद की नमाज कहाँ पढ़ती थी? ईदगाह में जाकर। तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ पाएंगी अगर हालत हैज़ में होने की वजह से, तो दुआ में तो शामिल हो जाएंगी। और फिर आपने खुतबा दिया, आपको लगा मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो फिर आप वहां से औरतों के पास आए तो उन्होंने भी फिर सदका व खैरात किया और वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर खुतबा दिया। ये दोनों हदीसें बता रही हैं कि नबी के जमाने में औरतें ईदगाह में जाके नमाज अदा करती थी, मोहल्ले की मस्जिदों में नहीं पढ़ती। याद कर लीजिए, नबी के जमाने में मस्जिद थी कि नहीं? अरे मस्जिद नबवी थी ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की नमाज कहाँ पढ़ते थे? मस्जिद नबवी में पढ़ते थे। लेकिन जब ईद की नमाज आती थी तो ईदगाह में जाके पढ़ा करते थे, ईदगाह जाया करते थे नमाज पढ़ने के लिए। तो आप चाहते तो औरतों से ये कह सकते थे कि हम लोग ईदगाह जा रहे हैं और तुम जो मोहल्ले में मस्जिद है जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ लेना, लेकिन नबी ने नहीं कहा। इससे मालूम ये हुआ कि औरतों को भी ईदगाह ही में जाके नमाज पढ़ना चाहिए। मोहल्ले की मस्जिदों के अंदर अलग अलग जगहों पर जो जमातें बनती हैं और उन्हीं में उनके इमाम भी बनते हैं, किसी भी हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साबित नहीं है। याद कर लिए ये बात, मुझे मालूम है। एक मरतबा मैंने इसी तरीके की बात कही थी। पूरा रिवाज था, औरतें घरों के अंदर एहतिकाफ में बैठा करती रमजान के महीने में। मुझे मालूम हुआ कि औरतें भी मस्जिदों घरों में एहतिकाफ में बैठती हैं। मैंने कहा ये तो जायज़ ही नहीं है, क्योंकि एहतिकाफ सिर्फ मस्जिद के अंदर है। मस्जिद के लफ्ज़ आया कुरान करीम के अंदर, मस्जिद का लफ्ज़, मस्जिद ही में एहतिकाफ है। मैंने बात उठाई कि घरों में एहतिकाफ है ही नहीं, फिर कैसे कर सकती हैं? शुरू में बड़ा मामला हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए जब लोगों की ये बात समझ में आई कि वाकई सुन्नत तो ये है कि मस्जिद में एहतिकाफ करो वरना मत करो। आज मैं समझता हूँ कि ये रस्म जो हमारे यहाँ चली थी, पड़ गई थी, वो खत्म हो चुकी है। आज मैं ये बात भी यहाँ से उठा रहा हूँ कि ये जो रस्म है ये सुन्नत नहीं है, ये रस्म निकल चुकी है हमारे यहाँ। औरतों की मस्जिदों में नमाज, मैं नहीं जानता किसने शुरू किया है इसको, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ ये नबी की सुन्नत नहीं है। नबी के जमाने में औरतें ईदगाह ही में जाके नमाज पढ़ती थी। अब आप ये कहेंगे कि मजबूरी है, हमारे पास में जगह नहीं है। तो सवाल ये है कि कितनी जगह है, और जो जगह है उसमें नमाज हो सकती है कि नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं है तो हम लोग इसका इंतजाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई आप अपनी ये मस्जिद देखें, पहले एक मंजिल थी, फिर 2 हुई, फिर जरूरत पड़ी तो 3 हो गई। बिल्डिंगें बनती गई कि नहीं? ये मंजिल बनती गई कि नहीं? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसको हम लोग बढ़ाते चले गए। क्यों? इसलिए कि जरूरत पड़ती गई और हम लोग उसको बढ़ाते गए जरूरत को खत्म करने के लिए। तो अगर आप ये कहें कि हमारे साथ मजबूरी है, तो मजबूरी तो पहले हम लोगों को भी यहाँ की जगह कम पड़ जाया करती थी मस्जिद के अंदर, लेकिन हम लोगों ने इसको बढ़ाया कि नहीं? उस मजबूरी को खत्म किया कि नहीं? तो आज औरतों के लिए ईदगाह में जगह निकालना, जगह बनाना, क्यों उस मजबूरी को खत्म नहीं कर सकते? इस रस्म को क्यों इतना ज्यादा
मजबूती से हम लोग पकड़े हुए हैं कि सुन्नत में सुन्नत है औरतों का भी ईदगाह में जाना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस चीज की तरफ हम लोगों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। ये हमारे नए लोग, नई जनरेशन, ये बच्चे, ये तो यही समझते होंगे, इन्हें पता ही नहीं, ये तो ये समझते होंगे कि मर्दों को वहां पे पढ़ना सुन्नत है, औरतों को यहाँ पे पढ़ना सुन्नत। पूछ लीजिए आपको, ये समझते होंगे औरतों को यहाँ पे पढ़ना सुन्नत है। मोहल्लों की मस्जिदों में, अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग जमातें हो रही हैं। आप इसको ज्यादा से ज्यादा अगर अपना दामन छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो ये कहेंगे कि मजबूरी है, लेकिन आप ये कह के बच नहीं सकते। मजबूरी खत्म की जाती है, और मजबूरी को हम लोग खत्म करते हैं, उसको खत्म करना चाहिए। तो औरतों को ईदगाह में लेकर एक चीज और, ईद की नमाज खत्म हुई, ईद की नमाज खत्म होती है तो क्या करते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या कहते हैं, ईद मुबारक हो। एक ने कहा ईद मुबारक हो, दूसरे ने कहा ईद मुबारक हो, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। सहाबा ऐसे नहीं कहते थे, ईद मुबारक नहीं कहते थे, और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, बल्कि सहाबा आपस में जब एक दूसरे से मिलते थे ईद के दिन, तो ईद मुबारक नहीं कहते थे, कहते थे तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे और हमारे आमाल को कबूल फरमाए, ये कहा करते थे। ईद मुबारक नहीं कहते थे साहब। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देखा गया वो गले मिल लेते हैं, उसको अरबी में मुआनका कहते हैं, गले मिलते हैं गले। उसके ताल्लुक से भी हदीस आई, तबरानी की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, काना असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तलाक़ू तसाफ़हू व इज़ा क़दिमू मिन सफ़रिन तानक़ू। सहाबी जब आपस में मिलते थे, मुलाकात करते थे तो मुसाफ़ा किया करते थे, गले नहीं मिलते थे। तो कहा कि गले कब मिलते थे? फरमाया जब हमने से कोई आदमी सफर से लौट के आता था, और जब वो मुलाकात करता था सफर से लौट कर आए, तो उससे गले मिल सकते, और वो भी 3 बार नहीं, 1 बार, 3 बार नहीं, 1 बार। अगर कोई सफर से लौट कर आए, ईद का महीना हो, बकरीद का महीना हो, कोई सा भी महीना हो, अगर आपको ये लग रहा है मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा कोई आदमी अगर बाहर से लौट कर आया है, सफर से लौट कर आया है, तो आप उससे 1 बार गले मिल सकते हैं, इस बात की इजाजत है। अब मुझे ये बताओ कि ईदगाह में जो हम लोग आपस में एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं, कौन कौन सफर से वापस आता है? कौन सफर में जाता है, कौन सफर से वापस आता है? सब तो घर पे ही होते हैं। तो ईदगाह में ईद मुबारक कहना नहीं, अल्लाह हमारे तुम्हारे अमाल को कबूल फरमाए, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ये कहना चाहिए। और मुसाफिर तक इजाजत है, गले मिलने की इजाजत नहीं है। गले जब मिल सकते हैं जब सफर से वापस हो। एक चीज और देख लीजिए, जानवर कैसे ज़बह किया जाता है। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए यहाँ पर, माशाअल्लाह, मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। जानवर ज़बह करते वक्त पढ़े क्या, ये मैं बता देता हूँ। कैसे लिटाना है उसको, क़िबले की तरफ मुंह करना है, जानवर का जो उल्टा हिस्सा है, मतलब बाईं तरफ का जो हिस्सा है उसको जमीन की तरफ करना, उसका दाईं हिस्सा ऊपर की तरफ करना है। तो आप लिटा लेंगे उसको, तो मेरा ख्याल है कि ये क्या है, उत्तर रखें, हाँ, तो दक्षिण की तरफ उसका मुंह हो जाएगा, उत्तर की तरफ उसके पैर हो जाएंगे। अब जब छुरी चला रहे हैं तो देखिए, सबसे छोटी और सबसे आसान दुआ तो यही है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये तो मैं समझता हूँ कि सभी को याद है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और अगर थोड़ा और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ऐ अल्लाह, मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से तू इसको कबूल कर ले, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये करके आप ज़बह कर दीजिए। अगर ये अल्फाज याद नहीं तो इतना दिल में नियत कर लीजिए, ऐ अल्लाह, मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से तू इसे कबूल कर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये पढ़कर आप ज़बह कर दीजिए। वरना एक बड़ी लंबी भी दुआ आई है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन, इन्न सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका व लका, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये दुआ। अब इतना लंबा तो जाहिर सी बात है कि जल्दी से याद हो नहीं पाएगी, तो इतना तो याद हो सकती है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कैसे आप बताएं। एक बात और सुन लीजिए, ये जो कुर्बानी है ना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, उनकी यादगार है। आज से 4000 साल पहले
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کیا. واقعہ بڑا مشہور ہے, سب کو یاد ہے, 20 بار 50 بار سنا ہے. لیکن اس واقعے کے اندر جو پوائنٹ ہے, جو نکات ہیں, اس کی طرف اگر دھیان ہمارا چلا جائے, آپ غور کیجیے. میں قرآن کے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن کے اندر جیسے بیان ہوا. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. دیکھیے صرف یہ نہیں کہا اولاد عطا فرما, نیک اولاد, نیک کا لفظ بڑھا لو. اولاد تو مانگ ہی رہے ہو, نیک کا لفظ بڑھا لو, ورنہ بڑھاتے سے کہو گے سنتی نہیں, مانتی نہیں. ارے تو آپ نے سننے والی مانگی کب تھی؟ آپ نے تو اولاد مانگی تھی. نیک مانگتے تب تو سنتی ہو. رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو گئے, اور ایک روایت کے مطابق 85 سال کے. اللہ رب العالمین سے برابر دعا کر رہے ہیں, 80 سال کی عمر ہو چکی ہے. اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. اب جب کھیلنے کودنے کی عمر ہوئی, بھاگنے دوڑنے کی عمر ہوئی, تقریباً 10-12 سال کے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو گئے, اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا. خواب دیکھ رہے ہیں, اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں. بیٹے کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے فوراً ہی سنا, جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان, آپ کو جو حکم ملایا فوراً کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اجازت دے دی کہ آپ مجھے ذبح کر دیجیے, آپ کو ذبح کرنے کا حکم ملا ہے. یہاں دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے, اور بیٹا کہہ رہا ہے اے میرے ابا جان. آج ہم لوگ پاپا ڈیڈی اور پتہ نہیں کیا کیا کہلواتے اپنے بچوں کو. ابا جان بہت پیارا لفظ ہے, اس کے اندر پیار اور محبت زیادہ ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. قرآن نے آگے بیان کیا فلما اسلما وتلہ للجبین. پھر دونوں لوگ آئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین, اور چھری کو لے کر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے پہ چلانے لگے, آواز آئی ونادیناہ ان یا ابراہیم, ہم نے آواز دیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے میرے بندے ابراہیم, تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑی آزمائش تھی, یہ بہت بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جو اسماعیل کی جگہ پہ ذبح کر دیا گیا. وترکنا علیہ فی الآخرین, اور اسی سنت کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری دنیا والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا. سلام علی ابراہیم, میرے پیارے بندے ابراہیم کے اوپر میری سلامتی ہو. انا کذالک نجزی المحسنین, وہ بڑا ہی نیک بندہ تھا. انہ من عبادنا المؤمنین, ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیا کرتے ہیں, وہ بھی میرا نیک بندہ تھا. آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیتوں کا کے حوالے سے میں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا. 3 چیزیں دیکھ لیجیے, صرف 3 چیزیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا اگر چاہتا تو منع بھی کر سکتا تھا, لیکن فرما برداری دیکھیے اپنے باپ کی کتنی کی. جانتے ہو علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے بڑے فرما بردار تھے. آزر کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کی تو آزر نے کہا میرے گھر سے نکل جا. وہ گھر سے نکل گئے, لڑے نہیں. کیوں نکل جاؤں, میں تمہارا بیٹا ہوں, تمہاری حصے, ہمیں حصہ چاہیے, مجھے پراپرٹی چاہیے, ہم ایسے کیسے نکل سکتے ہیں, پنچایت بلائیں گے. نہیں, باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ. اپنے باپ کا اتنا کہنا مانا کہ گھر چھوڑ کر چلے گئے.
یہ اپنے باپ کے فرما بردار تھے، تو اللہ نے جب ابراہیم کو اولاد دی اسماعیل، تو وہ اپنے باپ کی اتنی فرما بردار نکلی کہ باپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے کہنے سے اپنا گھر چھوڑ دیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم کے کہنے سے دنیا چھوڑنے پہ راضی ہو گئے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ابراہیم اپنے ماں باپ کے اتنے فرما بردار تھے کہ اپنے باپ کے کہنے سے گھر چھوڑ کے چلے گئے، باپ نے کہا چلے جاؤ۔ اس کے بدلے میں اللہ نے اتنی فرما بردار اولاد دی کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا تو یہ دنیا چھوڑنے پہ اسماعیل راضی ہو گیا۔ یعنی تم اپنے باپ کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو، تو اولاد تمہیں اللہ اتنی فرما بردار دے گا کہ تم سے زیادہ فرما بردار دے گا۔ سمجھ آیا؟ اور ایک چیز اور دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھوڑ دیا تھا؟ مکہ میں، اللہ کے حکم سے کہا چھوڑو، چھوڑا۔ اب ذرا غور کرو، اپنے ماحول کو دیکھو، اگر کسی باپ نے اپنی کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیا ویرانے میں، جنگل میں، کسی بڑے صحرا اور ریگستان میں چھوڑ دیا ہو ایسے ہی، اور وہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہے اپنی ماں سے پوچھے گا اپنے باپ کے بارے میں، اماں میرے ابو کون تھے؟ تو ماں کیا کرے گی؟ ماں کیا بتائے گی؟ تیرے ابو وہ تھے جس نے مجھے بھلی جوانی میں چھوڑ دیا، تیرے ابو وہ تھے جب تو دودھ پیتا بچہ تھا تجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ ماں اتنی نفرت بھر دے گی باپ کے تعلق سے کہ وہ چھوٹا سا بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنے اس باپ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرے گا، اور ہمیشہ یہ سوچے گا کہ کبھی میرے سامنے آ جائے تو میں اسے دو ہاتھ کر لوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے۔ لیکن قربان جائیے، حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے ریگستان میں چھوڑ دیا جہاں پیڑ پودا اور پرندے تک نہیں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کتنے اچھے طریقے سے کی کہ وہی اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور ابراہیم جب ان سے ملنے آئے ان کے باپ، تو باپ نے صرف ایک بار کہا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کتنے اچھے طریقے سے تربیت کی ہوگی کہ وہی بیٹا جس کے باپ نے اس کے دودھ پیتے زمانے میں چھوڑ دیا تھا، اس کے باوجود ایک بار سننے ہی سے کہنے لگا کہ ہاں میں ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو سمجھ میں آیا؟ ماں کو اپنی اولادوں کو کس طریقے سے پالنا چاہیے، ماں کو اپنی اولادوں کی تربیت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ وہ باپ جو بچپنے میں چھوڑ کر چلا گیا، اس کے تعلق سے بھی ماں نے اتنے اچھے طریقے سے اپنے بچے کو پالا پوتا تربیت دی کہ وہی باپ جب دوبارہ کئی سال کے بعد آتا ہے اور ایک بار کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹا کہتا ہے کہ ہاں تم مجھے ذبح کر سکتے ہو، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہا کیا تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے مرنے کے لیے، اور یہ اور وہ، جیسا کہ ہمارے یہاں تمام سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں قربانی کے اندر۔ سب میں دیکھیں قربانی ہے کیا؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن نے کہا فلما اسلما، جب دونوں لوگ اللہ کے فرما بردار ہو گئے، مطیع ہو گئے۔ اسلما اسلام کے معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور قربانی کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف جانور ہی کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں، نہیں، کبھی بھی موقع آ جائے اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ یہ جذبہ انسان کے دل کے اندر آنا چاہیے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے کہ کس تقوی اور کس نیت کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو۔ حضرت صاحب ٹہلنے کی رسی پکڑے ہوئے ہیں اور یہ پورے محلے کے اندر چکر لگایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لوگ پوچھیں گے تو بتاتے ہیں اچھا لگے گا کہ 1 لاکھ روپے کا بکرا لائے، 50,000 کا بکرا لے کر آئے، لوگ پوچھیں گے، ایڈورٹائز ہو رہا ہے۔ یہ نیت نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ نہیں چاہیے۔ ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ سب لوگ روزے سے ہیں، کھانے پینے کی تو کسی کو ضرورت ہے نہیں ہے۔ دیکھیے قربانی کے تعلق سے ایک بات اور بتاؤں، قربانی کے تعلق سے 3 حدیثیں بڑی مشہور ہیں۔
3 حدیثیں بڑی مشہور ہیں قربانی کے تعلق سے جو بالکل صحیح نہیں ہے اور مشہور بہت ہے. ہم لوگ کی سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہوگا. تینوں کون سی حدیث ہیں وہ بھی سن لیجیے. یہ پہلی حدیث جو مشہور بہت ہے لیکن صحیح نہیں ہے, یہ دھیان رکھنا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. کہ اللہ کے نبی ہم اگر قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. مشہور کتنی ہے, مشہور ہے نا, ہر بال کے بدلے ایک نیکی. لیکن یہ حدیث بالکل بھی صحیح نہیں. جی صحیح نہیں ہے یہ حدیث. ہر بال کے بدلے نیکی نہیں ملتی ہے, نیت کے بدلے نیکی ملتی ہے, تقوی کے بدلے میں نیکی ملتی ہے. آپ کا ارادہ دکھانے کا ہو, ریاکاری کا ہو, نیت آپ کو نیکی نہیں ملے گی. یہ حدیث غلط ہے, صحیح نہیں ہے یہ حدیث. تو پہلی حدیث مشہور بہت ہے لیکن صحیح نہیں ہے. کون سی؟ کہ ہر بال کے بدلے نیکی, غلط ہے. دوسری حدیث جو مشہور بہت ہے لیکن صحیح نہیں ہے, کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. یہ بھی حدیث بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے. ما عمل ابن آدم عملا احب الی اللہ من احراق الدم, کہ خون بہانے سے زیادہ اللہ رب العالمین کو کوئی عمل قربانی کے دن پسند نہیں ہے. یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. بیان بہت کی جاتی ہے, مشہور بہت ہے لیکن صحیح نہیں. اور ایک اور جو اس سے بھی زیادہ مشہور ہے حدیث, کون سی؟ جو بالکل یہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے. فرمایا عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم, قربانی کے جانور کو خوب موٹا تازہ کر لو, یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنے گے. جب تم پل صراط پار کرو گے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسی پر تو بیٹھ کر ہم قربانی کے جانور ہی پر بیٹھ کر تو پل کو پار کریں گے. یہ بالکل ہی واہیات اور ایک دم غلط بات ہے. حدیث سے اس کا کوئی میل جول نہیں ہے اور یہ بالکل غلط ہے. یہ حدیث نہیں ہے, صرف بیان کیا جاتا ہے, حدیث کہہ کر اس کو بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ غلط ہے. تو یہ 3 چیزیں کہ ہر بال کے بدلے میں کی, خون بہانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, اور یہ پل صراط سے ہماری سواری بنے گی. یہ تینوں حدیثیں, نام ان کا ضرور حدیث کہا جاتا ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. اور ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, سبھی لوگ ہیں. یہ سب کیا ہے, کچھ ہمارے بزرگ بھی ہیں تو انٹرنیٹ چلاتے ہیں, نیٹ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ قربانی کے فوٹو اور قربانی کی ویڈیو بہت سارے لوگ کھینچ لیتے ہیں, کھینچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو نیٹ پر شیئر نہ کریں. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کسی نے ویڈیو بنا لی, پھر اس کو اس نے واٹس ایپ پہ ڈال دیا, فیس بک پر اپنی آئی ڈی سے ڈال دیا. اس طریقے کی چیزوں سے اگر بچیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ قربانی کی تمام چیزوں کو فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا نیٹ پر ویڈیو کو, اس کی فوٹوؤں کو اس پہ اپلوڈ نہ کریں, شیئر نہ کریں, اس پہ پوسٹ نہ کریں, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا موبائل میں لوگوں نے 3-4 دن پہلے ہی سے تیاری شروع کر دی ہے. ایک صاحب نے مجھے میسج لکھ کر بھیجا, موبائل پر لکھا ہوا تھا کہ بقرعید والے دن نہ 3G نہ 4G, صرف کلیجی. بقرعید والے دن نہ 3G نہ 4G, صرف کلیجی. ایسے چیزیں آنے لگی ہیں نیٹ پر. تو میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس طریقے کی چیزیں شیئر نہ کریں, تو حالات کے حساب سے بھی وہ بہت بہتر رہے گا. اور باقی کئی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی, بہت ساری چیزیں باقی ہیں, انشاءاللہ آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.